હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વર્ષ 2021 કર્મા ફાઉન્ડેશનનું સહારા ઇનિશિયેટિવ આ નવા વર્ષનો પહેલો કાર્યક્રમ લઈ અને આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત છે. શામ શાનદાર, નામ જેટલું શાનદાર, કાર્યક્રમ એટલો જ જાનદાર. બંકિમ પાઠક, વોઇસ ઓફ રફી, બિગ બી ઓફ ગુજરાત. જેટલા શાનદાર એમના અચીવમેન્ટ્સ, એટલી જ જાનદાર એમની અવાજની તાકાત. આજના આ કાર્યક્રમમાં આપ સૌને ખબર છે કે વર્ષ 2021ને ખૂબ જ સ્ફૂર્તિથી, ઉત્સાહથી, સંગીતથી વધાવવા માટે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને આપ સૌ આપણા સૌના લોકલાડીલા, માનીતા, જાણીતા, સુરીલા એવા બંકિમ પાઠક સરને સાંભળવા માટે આતુર છો. 1981 થી બંકિમ પાઠક સરના ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા એવા સુરીલા સુર સામ્રાજ્ઞી દક્ષાબેન ગોહિલ પણ આજે એમની સાથે જોડાયા છે. અને એ આપણા માટે આ નવા વર્ષનું એવું કહી શકાય કે સોનામાં સુગંધ જેવું કાર્ય છે અને આપણું ભાગ્ય છે. મને ખબર છે તમને સૌને ગીતો સાંભળવા છે અને એટલે જ રાહ જોઈ રહ્યા છો. તો હું પ્રોમિસ કરું છું કે હું વધારે નહીં બોલું અને ગીતો જ વધુ સાંભળીશું. પણ સાથે સાથે હંમેશા મ્યુઝિકલ ઇવેન્ટમાં આપણે જોયું છે કે ગીત વિશે વાત થાય છે, ગીતકાર વિશે વાત થાય છે, ગાયક વિશે વાત થાય છે, એમના જીવનની ચડતી પડતી વિશે ને પ્રસંગો વિશે વાત થાય છે. પરંતુ આજે આપણે એક નવી રીતે આ કાર્યક્રમને માણીશું, જ્યાં બંને કલાકાર છે એમના વિશે વાત કરીશું, એમના વિચારો જાણતા જઈશું અને એમના દ્વારા ગવાયેલા ગીતો માણતા જઈશું. તો શરૂ કરીએ આજનો કાર્યક્રમ. બંકિમ સર કર્મા ફાઉન્ડેશનના સહારા ઇનિશિયેટિવના આ વર્ષ 2021ના પહેલા કાર્યક્રમમાં આપનું દિલના સંગીતથી સ્વાગત કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને આજનો આ કાર્યક્રમ બધા લોકો ખૂબ જ રાહ જોઈ રહ્યા છે આપની વાતો જાણવાને, આપના ગીતો માણવા. તો પહેલા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીશ, જેની મને પણ ક્યુરિયોસિટી રહી છે કે ડિફરન્ટલી એબલ્ડ પર્સન એટલે જીવનના સંઘર્ષો તો હોય જ, પરંતુ એ સંઘર્ષોની વચ્ચે આ એક સિનિયર સિટીઝન લેવલે 3 જુલાઈ 1948માં જન્મેલા શ્રી બંકિમ પાઠક આજે 2021 એટલે કે અંદાજે આપણે કહી શકીએ કે 72 વર્ષની ઉંમર આપની, અને તે છતાં પણ એ જ તરવરાટ, એ જ હાસ્ય, એ જ મોહકતા અને સૌથી મોટી ચેલેન્જ કે ડિફરન્ટલી એબલ્ડ હોવું, ત્યાંથી લઈને અત્યાર સુધી કેવી રીતે જાળવી શક્યા છો? તમારી જીવનની જે જર્ની છે એની થોડીક રસપ્રદ વાત પ્લીઝ. સૌથી પ્રથમ તો 1948માં જ્યારે મારો જન્મ થયો અને 3 વર્ષ પછી મને પોલિયો એટેક થયો. પોલિયો એટેક શરૂઆતમાં જ્યારે મને થયો ત્યારે એ વખતે કોઈ આવી રસી કે કંઈ હતું નહીં અને હું પોલિયોનો શિકાર થયો. પણ મારા ફાધર, જેમનું નામ છે પ્રવીણચંદ્ર પાઠક, स्वर्गीय, इज नो मोर, लेकिन मैं गुजराती में बोलूं कि हिंदी में बोलूं? તમને જેમાં પણ કમ્ફર્ટેબલ હોય. તો મારા પિતાશ્રીએ મને એટલો બધો સપોર્ટ આપ્યો, મેન્ટલી સપોર્ટ આપ્યો કે હી વોઝ પોઝિટિવ થિંકિંગ. અને શરૂઆતમાં તો જેમ નાનું બાળક હોય છે તેને ઉચકીને પણ જવો પડતો હોય છે, પણ મારા ફાધરને એક વખત વિચાર આવ્યો કે આપણે ક્યાં સુધી એને ઉચકીને જઈ શકીએ આપણી શક્તિ, તો એમણે મને છૂટો દોર મૂક્યો અને હું મારા મનથી એકદમ સ્ટ્રોંગ થતો ગયો. અવાજની અંદર એમનો જ મને વારસો મળ્યો છે, મારા પિતાશ્રીનો વારસો મળ્યો છે. હી વોઝ અ વેરી ગુડ સિંગર અને ફોક મ્યુઝિકના, ગરબાના ને બહુ સારા સિંગર હતા. એમનો મને વારસો મળ્યો અને રફી સાહેબના આશીર્વાદ મળ્યા, લોકોનો પ્રેમ મળ્યો. એટલે પછી મેં એ તરફે શરૂઆત કરી અને
મનથી એટલો મજબૂત હતો કે મને કોઈ પણ હું નેગેટિવ વિચાર મારા મગજમાં જ આવતો નથી. સુંદર. કારણ કે જ્યારે હું જે આ પરિસ્થિતિની અંદર હતો તો એમટીએસ ની અંદર જઈને અને રિહર્સલ તો કરીશ જ. રિહર્સલ કોઈ પણ હું કોઈ મારા માટે વિચારો કે એ શબ્દ વાપરે that I don't like it. રાઈટ. એટલે મને મનથી જ નક્કી કર્યું કે મારે આ કરવું છે અને ભગવાને મને શક્તિ આપી અને હું ધીરે ધીરે 1969 ની અંદર મેં શરૂઆત કરી વિસરાતા સુર. અમરીશ પરીખનું વિસરાતા સુર ચાલતું હતું ત્યારે હું ત્યારથી શરૂઆત કરી અને ત્યાર પછી અનેક કાર્યક્રમો વિસરાતા સુરની અંદર ખાંડેકર બ્રધર્સ સાથે મેં અનેક કાર્યક્રમો આવ્યા. 1980 ની અંદર રફી સાહેબનો જે ઇંતકાલ થયો ત્યાર પછી 1981 ની અંદર મેં એક યાદ રફી કે બાદ ટાઇટલ શરૂ કર્યું અને એક યાદ રફી કે બાદ થી કન્ટિન્યુઅસ પછી આગળ વધતો ગયો અને અત્યારે આ પોઝિશન ઉપર છું. મને લાગે છે કે હું ઉપરવાળાની મહેરબાની સિવાય આ શક્ય નથી હોતું. એટલે ભગવાને શક્તિ આપી અને રફી સાહેબના આશીર્વાદ, લોકોનો પ્રેમ હજી પણ ટકી રહ્યો છે. આટલી 72 વર્ષની ઉંમર, હું 27 વર્ષની ઉંમર કહું છું. પરફેક્ટ. એવા જ લાગો છો ને એ જ રીતે તો તમે કરી રહ્યા છો કામ. ખૂબ જ સુંદર વાત કહી આપે. આપણા માટે પેલી યુક્તિ કહી છે કે અડગ મનના માનવીને હિમાલય પણ નડતો નથી. થેન્ક યુ. યસ, ધીસ ઇઝ વેરી ટ્રુ. તો આ વાત સાથે આપના તરફથી વર્ષ 2021 નું આ કાર્યક્રમનું પહેલું ગીત થઈ જાય. બસ તો 2021 ની અંદર એક બહુ સરસ હું खत लिखूं છું. मैं खत लिख रहा हूँ अपने चाहने वालों को और मैं बहुत ही कर्मा फाउंडेशन और सहारा का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. उनको भी एक खत में आपको. हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं आपके. आइए तो मैं सुनाता हूँ वही खत जो नीरज जी ने लिखा है और शंकर जयकिशन जी की तर्ज पर रवि साहब ने गाया है. लिखे जो तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजरे बन गए. लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजरे बन गए. सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात ही तो सितारे बन गए. दिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई. कहीं टटकी कली कोई मैं ये समझा तू शर्माई. कोई खुशबू कहीं बिखरी लगाए लहराई. लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए. लिखे जो खत तुझे
फिजा रंगी अतारंगी, ये दिखलाना, ये शर्माना, ये अंगड़ाई, ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जा दूर ये दीवाना, दिखे जो न तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जो हुआ तो फूल बन गए, जो रात ही तुम सितारे बन गए, दिखे जो खत से। थैंक यू। और ખૂબ સુંદર રજૂઆત. આપનું આપનું ગીત સાંભળીને આપણી જે ટેકનિકલ ટીમ છે ને એ પણ એટલી ખોવાઈ ગઈ અને તમારા લખેલા ખત વાંચવામાં બિઝી થઈ ગઈ કે આપણું કનેક્શન જરા થોડું લેટ શરૂ થયું. પણ બીજો પ્રશ્ન કે બંકિમ પાઠક ફાઉન્ડેશન એના વિશે પણ જે માહિતી છે કે આપ દિવ્યાંગો માટે આ ફાઉન્ડેશન માટે કામગીરી કરી રહ્યું છે ફાઉન્ડેશન, જેની અંદર એમનું શિક્ષણ, એમની જીવન જરૂરિયાત, એમને નોકરી, ધંધા, રોજગાર પ્રત્યે એમનો અભિગમ વધુ કેળવાય અને એમને મળી શકે એમની જીવનની પ્રગતિ, એ બધા જ કામ આપ આ ફાઉન્ડેશન દ્વારા કરી રહ્યા છો. તો એના વિશેની થોડી વાત તમારા જ મુખેથી. જી, શ્રોતાઓને શ્રોતાઓ તો જાણે જ છે બંકિમ પાઠક ફાઉન્ડેશન માટે, પણ હું ફરી કહીશ કે જ્યારે આ પરિસ્થિતિ મારી પાસે હતી ત્યારે મને એક વખત એવો વિચાર આવ્યો હતો કે જ્યારે સમાજે, સોસાયટીએ મને બધું આપ્યું છે, નામ, ઇજ્જત, પૈસો, બસ પ્રેમ બધું આપ્યું છે, ત્યારે સમાજ પ્રત્યેની મારી પણ એક ફરજ થઈ જાય. કારણ કે હંમેશા હું સમજુ છું કે ઉપરવાલા એક वक्त देता है सोसाइटी को वापस देने के लिए. तो उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि मुझे अपने भाइयों बहनों के लिए भी सोचना चाहिए. उस वक्त 2004 में, इससे पहले भी मैंने बहुत कई चैरिटी शोज किए हैं, लंदन में किए हैं, कई जगह पर किए हैं, लेकिन इसके बाद 2004 में मुझे ये ख्याल आया, तो मैंने ये ख्याल हमारे मित्र श्री हसीद भाई से रखा और हसीद भाई ने डायरेक्ट उस वक्त के आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई से बात की और उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको बात की कि मैं ऐसा करना चाहता हूं. तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा ख्याल है. तो उन्होंने टाइम दिया और उनके हाथों बंकिम पाठक फाउंडेशन का इनॉग्रेशन हुआ. और बस तब से 2 साल में 2 कम से कम साल ये रफी साहब की श्रद्धांजलि 31 जुलाई और 24 दिसंबर ये लगातार मैं शो करता आया हूँ ये 2004 के बाद. और वो फिजिकली हैंडीकैप के लिए, कन्या केनौनी के लिए मैं ये चैरिटी शो करता हूँ. और सलाम है सर आपको, बहुत बढ़िया काम करते हो आप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बहुत इसमें मैं कह दूं कि मैं करता हूँ ये मैंने कभी नहीं कहता. गुजराती में આપણે કહેવત છે કે હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. એટલે એ ભાર મારે તાણવો નથી, ઉપરવાળાની કૃપા છે અને લોકોનો બહુ જ સહકાર છે. તમામ સંસ્થાઓ, લોકો પણ એ પ્રોગ્રામની અંદર પોતે કોઈ પણ સવાલ કર્યા વગર ટિકિટ લઈ અને મને જેમ મેક્સિમમ મારી ઇન્કમ થાય ફાઉન્ડેશનને એ રીતનો એમનો પ્રયત્ન કરે છે અને ઘણા મિત્રોનો સાથ છે અહીંયા. ખૂબ જ સુંદર વાત કરી. જેવા આપનો અવાજ છે, જેવા આપના ગીતોની ગાયકી છે, એનાથી તો લોકો મંત્રમુગ્ધ થાય છે જ, પરંતુ જે કાર્યો આપ કરી રહ્યા છો, જે શરૂ કર્યા છે ને હજુ સુધી કરી રહ્યા છો અવિરતપણે, ઈશ્વરને પ્રાર્થના કે આપના આ કાર્યો, આવા કાર્યો અવિરતપણે હજુ પણ નિરંતર ચાલ્યા કરે. તો બીજા ગીતની પ્રસ્તુતિ માટે લોકો આતુર છે, તો થઈ જાય કોઈ જાનદાર શાનદાર ગીત. બીજું ગીત એક એવા સદાબહાર કલાકાર ઉપર પિક્ચરાઇઝ છે અને રફી સાહેબ એક એવા સિંગર હતા કે જે દરેક અદાકારના પ્લેબેક સિંગર તરીકે ઉભર્યા છે. પહેલું ગીત જ્યારે મેં ગાયું એ
પિક્ચરાઇઝેશન વોઝ ઓન શશી કપૂર. હવેનું જે ગીત આવે છે તેમાં શૈલેન્દ્ર સાહેબનું ગોલ્ડ છે, S.D. બર્મન સાહેબનું સંગીત છે અને ફિલ્મના પડદા ઉપર કોણ કલાકાર છે એનો આપણે ગેસ કરવાનો છે. પણ હું ગીત ચોક્કસ અત્યારે આપને જાણદાર ગીત છે, હું આપને સંભળાવીશ. खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी. ओ खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी. ओ खोया खोया चांद. मस्ती भरी आवाजों चली, मस्ती भरी आवाजों चली, खिल गई ये दिल की गली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ. हो खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी. ओ खोया खोया चांद. तारे चले तारे चले तारे चले तारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ. हो खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी. ओ खोया खोया चांद खोया खोया चांद. Thank you. ખોયા ખોયા ચાંદ, વાહ. ઘણા બધા લોકોને પોતાના એ દિવસોની યાદ તાજી કરાવી દીધી, કારણ કે આ જે ગીતો છે સદાબહાર ગીતો. અને આજે હું આપણે જોઈ રહ્યા છે તમામ દર્શકોને કહી દઉં કે આ ટોટલી સોંગ સિલેક્શન્સ સરનું છે, મેમનું છે. એમને છૂટ આપી છે કે એમને જે પોતાને ગમતા ગીતો રજૂ કરવા હોય એ રજૂ કરે. એટલે અમે એવું કોઈ જ માળખું નથી બનાવ્યું કે તમારે આ જ ગાવાના છે. આ એમના મનની વાત છે અને ફૂલ્લી એમની જ ચોઇસ છે. સર આવા ગીતો જયારે જાણીએ ને કે લીખે જો ખત તુજે, ખોયા ખોયા ચાંદ, એટલે ખૂબ જ અંદરથી એવી એક વાત આવે કે આ પ્યાર, મોહબ્બત, ઇશ્ક જે તમે નગમાઓમાં ઢાળીને રજૂ કરો છો, એ વસ્તુઓનું એક ગીત ગાયક તરીકે, એક કલાકાર તરીકે તમે પોતે એને કેટલું મહેસૂસ કરો છો, એના વિષયમાં આપ શું કહેશો? જ્યારે ગીતોની અમે સિલેક્શન કરીએ છીએ ત્યારે મોટા ભાગે પોપ્યુલર ગીતો, કારણ કે જ્યારે માસમાં હોય છે ત્યારે હંમેશા પોપ્યુલર ગીતો જેમ અમે ગાઈએ એની સાથે સાથે લોકો ગાય એવો અમે આગ્રહ રાખીએ. કારણ કે ઓફ બીટ પણ ગીતો ખૂબ સરસ છે, પણ ઓફ બીટ ગીત કેમ
ન વધારે લોકોમાં લોકભોગ્ય થયા. એનું એક ઉદાહરણ તમને એક આપું કે ઓપી નયર સાહેબ એક કમ્પોઝિશન એમણે બનાવ્યું હતું અને એની અંદર એરેન્જર એક મ્યુઝિક બતાવતા હતા અને મ્યુઝિશિયન ને બતાવતા હતા કે એટલે ओपी नय्यर साहब કીધું કે बहुत देर हो चुकी है अभी जरा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं. तो अरेंजर कहने लगे कि सर 2 मिनट मैं म्यूजिशियन को जरा समझा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड पीस है. ओपी नय्यर साहब ने क्या कहा कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड पीस है वो अगर म्यूजिशियन को समझने में इतनी देर लगती है तो लोग कैसे समझेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर दो. ये ओपी नय्यर साहब ने कहा. ओपी नय्यर साहब ने वो बात कही और तुरंत उसको सिंप्लीफाई कर दिया. इसीलिए लोकभोग्य होने के लिए मैं समझता हूँ कि पॉपुलर गाने जो हैं वही चलते हैं और कभी कभी हम 8-10 गीत के बाद एक आध ऑफ बीट गीत भी कभी ले लेते हैं. तो आइए एक ऐसा ही गीत आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ. गुजरात में इस नाम का लेने के लिए बहुत ही पाबंदी है, लेकिन गाने में कोई पाबंदी नहीं. कि जब रवि साहब ने जब हर अदाकार के लिए गाया है, हर सब्जेक्ट के लिए गाया है, लेकिन जब कभी किसी नशीली बात आती है तो रवि साहब के सिवा किसी और को याद नहीं किया जाता. आई मैं सुनाता हूँ वो गाना. छोड़े तो कुछ और नहीं है, जान है ये छूले तो कुछ और नहीं है, जान है ये कुदरत में जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी नाम है ये छूले में जो नाम के नयों ही खोजे रंगीन जवानी की गई शर्मा के नयों ही खोजे रंगीन जवानी की गई बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये झूले में दो कुछ और नहीं है, जान है ये झूले में दो को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है. अखों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है. इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये छूले में दो कुछ और नहीं है, जान है ये कुदरत में जो हमको बता वो सबसे हंसी नाम है ये छूले में तो थैंक यू.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप मैस्मराइज कर देते हो। ये ऐसे ऐसे गाने गाते हो, मतलब रफी जी अगर कहीं से सुन रहे हैं तो वो भी इतने इतने खुश होते होंगे आपके। सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। जब जब लाइव होता है तब तब बिल्कुल लाइव ही होता है और ऐसा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फ्रेंड्स, आवाज निकाले तो फिर पता नहीं चले कि हम कोरोना से बाहर आ गए। આપણે બેક ટુ બેક બંકિમ સરને સાંભળ્યા 3 ગીતો, બહુ જ મજા લીધી. અને હવે હું સ્વાગત કરીશ દક્ષાબેન ગોહિલનું, કે જેઓ આપણી આ શાનદાર શામને ઓર જાનદાર બનાવવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે. દક્ષાબેન, આપને સાંભળવા પણ અમે સૌ આતુર છીએ. હવે મને સાંભળી શકતા હશો આપ? યસ પ્લીઝ. તો આપ, હા જી, તો આપને સાંભળવા અમે સૌ જ આતુર છીએ અત્યારે. પરંતુ જે આપણે આજે નક્કી કર્યું છે કે વાત કરીશું અને પછી ગીત ગાઈશું, કારણ કે ગીતો તમારી પસંદના, સવાલ અમારી પસંદના. ડેફિનેટલી. તો તમારા માટે પહેલો પ્રશ્ન છે કે આવા જે સ્પેશિયલ કોઝ માટે જે કાર્યક્રમો થાય છે એની જે લાગણી તમારી અંદર છે એ શું છે ને કેવી રીતે છે ને આવા કામ તમે કરવામાં શું અનુભવો છો? પહેલા તો એક આર્ટિસ્ટ હોવાથી એક ઇમોશનલ હોઈએ જ છે અમે લોકો, એટલે એના લીધે કોઈ પણ આવી વસ્તુઓ કે આઈ મીન નોટ વસ્તુઓ પણ આવી જે અમારી સમક્ષ જે બધી નજરમાં જે વસ્તુઓ આવે એને જોઈને એટલે અમારું દિલ તરત જ પહેલા પીગળી જ જાય, કારણ કે આર્ટિસ્ટને હંમેશા સિંગર્સ જે હોય ને એ હંમેશા દિલથી બહુ નાજુક હોય છે, એટલે એના ઇમોશન્સ હંમેશા આવી બધી વસ્તુઓ ઉપર ભાવુક થઈ જ જતા હોય છે. અને આ રીતે બંકિમજી સાથે હું જોડાઈ ને એમની સાથે જયારે કાર્યક્રમો કર્યા મેં ને આવી ટાઈપના જયારે મેં કાર્યક્રમો કર્યા ત્યારે એ દ્રશ્ય જે જોઈને પછી જે ફીલ થાય તો એ ઇનર વોઇસ આપણો એટલો બધો જાગી જાય છે ને કે ઘણી ફેરે ઇમોશન્સ એ અમારા ત્યારે એ પ્રસંગે અમે ગાતા હોય ને તો પણ અમારી આંખોમાંથી વહી જાય છે. હા, સત્ય રીતે કે એ ઇમોશન્સ અમારા ડેફિનેટલી ઉભરાઈ જ આવે છે આવું કાર્ય કરતા. એક સાચા કલાકારની ઓળખ જ એ છે કે સંવેદનશીલ હોય છે. જી જી, એટલે રુજુ હૃદય ધરાવનારને જ ઈશ્વરની આવી બધી માં સરસ્વતીની કૃપા મળતી હોય છે કે આટલા સુંદર અવાજને ધારણ કરીને લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરી શકે. તો હવે તમારો વારો દક્ષાબેન. લોકો આપને સાંભળવા માટે આતુર છે, પ્રસ્તુત કરીએ આપના તરફનું પહેલું ગીત. શ્યોર. જી. रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हंसी पाएगा। हंसी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हंसी पाएगा। जी रूठ चले अब निगाहों
चली अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा, हजी रूठ चली अब। जो दिल में हो तो पिलाना भी मुश्किल, मगर उसको दिल में छुपाना भी मुश्किल, नजर की जुबां से समझना आएगा, नजर की जुबां से समझना आएगा, समझ गए जरा और फरमाइएगा, हजी रूठ चली अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा, हजी रूठ चली अब। हम तो आपसे रूठे ही नहीं है और रूठ के कहीं जाएंगे भी नहीं। हम तो हेलो, आपको सुनने के लिए तो आए हैं, रूठ के कहाँ जाएंगे हम। बहुत ये बढ़िया, बहुत डेफिनेटली बढ़िया। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, तो आप जब गाना गा रही थी तो मैंने सोचा हमें तो कहीं जाना ही नहीं है, ये ऐसे क्यों बोल रही है। फिर देखा कि चलो कलाकार है, उसके दिल में क्या आया पता नहीं, पर दूसरा सवाल मेरे पास आ गया जरूर। और वो ये है कि इतने सुंदर आपकी आवाज है, इतने आप मतलब सुरों को इतने अच्छे से बहला लेती है, तो आपकी लाइफ में इसकी बदौलत बहुत सारे अचीवमेंट्स भी होंगे, सिद्धियां भी होंगी, तो जी, उसके बारे में भी हमारे हमारे साथ आपकी वो जो भी सिद्धियां है उसको शेयर कीजिए। पहले तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स दोनों के गुण मेरे में आए हैं, यानी कि गाने के गुण जो होते हैं वो आए, और मैं ये नक्शे कदम मेरी सिस्टर की बदौलत आई हूँ इस फील्ड में, और साथ में फिर बंकिम जी भी रहे, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत ये स्टेज लाइन पे आ गई। तब तो मैं सिर्फ अकम्पनी करती थी मेरी सिस्टर के साथ, तो फिर बाद में तब पुराने गाने मुझे अच्छे नहीं लगते थे, सही में ओके। बहुत बोरिंग लगते थे, लेकिन सिस्टर के साथ रहते रहते फिर गाने गाते गाते फिर मेरे को आज ऐसा हो गया है कि पुराने गाने ज्यादा मुझे पसंद आने लगे। ऐसे नहीं है कि नए गाने पसंद नहीं आते, नए गाने भी बहुत सारे अच्छे हैं जो मैं गुनगुनाती हूँ कभी कभी, लेकिन ज्यादातर मैं पुराने गाने ही गाती रहती हूँ। नहीं नहीं, समझ तो आ जाता है, लेकिन जो भी है ट्रेंड चलता है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अचीवमेंट के बारे में बोलूं तो अगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मैं भगवान का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस ऐसे प्रोफेशन में रखा है कि जिससे मुझे कामयाबी मिली है, दौलत मिली है, शोहरत मिली है, सब कुछ मिला है। इज्जत और मान जो एक एक आदमी को मिलना चाहिए वो इतनी मिलती है कि वो देख के ऐसा लगता है कि सही में भगवान ने हम पर बहुत ही कृपा की है कि हमको एक आर्टिस्ट बनाया है। काफी जी सारी जी जी। अचीवमेंट्स रही है मेरे कैरियर के दौरान। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 41 years, सो बहुत सारी खुशियां मिली है, अचीवमेंट्स मिले हैं, लोगों का प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ इस बारे में। बट वाकई आप तो खुश नसीब है जो आप बोल रहे हो कि आपको वरदान मिला है, पेरेंट्स की कृपा मिली है, भगवान जी की कृपा मिली है, लेकिन जी आप जैसे कलाकार को सुनने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है,
हम भी अपने आप को खुशनसीबी समझते हैं। थैंक यू तो थैंक यू। वो सब ब्लेसिंग्स आप लोगों की बदौलत ही रहते हैं कि हम लोग आज तक इतने सालों से इस फील्ड में लगे हुए हैं। थैंक यू। बस तो इसी बात पे एक दूसरा गाना भी हो जाए आपकी ओर से। ये मेरे दिल के बहुत ही करीब गाना है, मुझे बहुत ही पसंद है ये गाना। जी हाँ, फरमाइए, सुनाइए। वादिया मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाऊंगी मेरी सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाऊंगी मेरी सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन जब हंसेगी गली रंगवाली कोई जब हंसेगी गली रंगवाली कोई और चुप जाएगी तुम प्यारी कोई मुझे मुझे पाओगे। आदिया मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाऊंगी मेरी सिवा तुम कहाँ जाओगे। आदिया मेरा दामन जगमगाते हुए तुम यूं आओगे। आदिया मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाऊंगी मेरी सिवा तुम कहाँ जाओगे। आदिया मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाऊंगी मेरी सिवा तुम कहाँ जाओगे। आदिया मेरा दामन। खूब જ सुंदर। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे आपके साथ जुड़े हुए। અને હવે થોડુંક ફોર ફન તમારા બંને માટે એક રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ રાખ્યો છે। ઓકે હા, કે જેમાં હું ફટાફટ પ્રશ્નો પૂછીશ, हाँ जी રાઈટ? તો પહેલા આપની સાથે રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ કરીશ, પછી સર સાથે કરીશું અને પછી તમારું ડ્યુએટ સાંભળીશું, બરોબર? તો પહેલો પ્રશ્ન છે દક્ષાબેન આપના માટે, हाँ जी બ્લેક ઓર વ્હાઈટ? ब्लैक તમે સિંગર ના હોત તો? आर्किटेक्ट ओके। फैशन की सादगी?
सादगी। બંકિમ જી કે રફી જી? રફી જી. ફરવું કે ઘરમાં રહીને ગીતો સાંભળવા? ફરવું. ટેલિવિઝનમાં આવતો ફેવરિટ શો? શો. ટેલિવિઝનમાં જે શો આવે તમારો ફેવરિટ શો? કુંડલી ભાગ્ય અત્યારે. ઓકે. અને યોગ કે સંગીત? સંગીત. વેરી નાઇસ. મેં 7 સવાલ એટલે રાખ્યા હતા કે સંગીતમાં 7 સુર હોય છે. હવે 7 પ્રશ્નો સર માટે. यस. શોખ કે ધ્યેય? ध्येय. रामायण के महाभारत? रामायण. रफी जी के बंकिम जी? रफी जी. देव रफी जी. गमता गायक रफी जी सिवायना? मुकेश जी. ओके. તમે બંકિમ પાઠક વોઇસ ઓફ રફી ના હોત તો શું હોત? चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. वाव, सुपर्ब. सुखी जीवनની ચાવી? अंडरस्टैंडिंग. ગ્રેટ. કેટલા સવાલ થયા? 6. ઓકે. ફાઇન. આ 7મો સવાલ પણ આપે ખૂબ જ સરસ રીતે પાર કર્યો છે અને હવે તમને ડ્યુએટ ગાવાની છૂટ આપવામાં આવે છે. પ્લીઝ થઈ જાય. થેન્ક યુ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्यूएट शुरू करूं इससे पहले कि इतने साल मेरे भी 50 साल 51 साल इनके संगीत में गुजरे हैं ओके. और हर एक में लाइव शो में ही मैं रहा हूं लाइव शो ऑडिटोरियम में. लेकिन ये कोरोना महामारी ने मुझे मार मार के मुल्ला बना दिया है कि मैं ये इन पर ये ट्रैक पर गा रहा हूँ. जी 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 जी. क्योंकि वरना पीछे मेरा ऑर्केस्ट्रा होता था, कम से कम 10-12 म्यूजिशियंस होते थे, 40 म्यूजिशियंस होते थे, कभी वायलिन्स बजती थी, ये सब बजता था. लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि मेरा साथ जो दिया है हाँ. अभी मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अगर मेरे साथ किराट शुक्ल जी जी जो किराट शुक्ल मेरे भतीजा भी है, मेरे दोस्त शशांक शुक्ल, ही इज ऑल्सो वेरी गुड सिंगर. इनका बेटा है, बहुत ही अच्छा गाता है, बहुत ही अच्छा गाता है. लेकिन जी. अफसोस ये है कि ये कुछ इसमें कुछ हम एडजस्ट नहीं कर पाए, वरना उनका भी गाना हमने रखा था और शायद अगर जी. मौका मिले तो मैं उनको भी गवाने की कोशिश करूंगा. लेकिन अगर- ये सॉरी मैं हाँ. ये इसीलिए कहता हूं कि ट्रैक पे कोशिश कर रहा हूं मैं. दक्षा जी मुझसे आगे हैं, वो ट्रैक पे गाती भी हैं. किराट भी बहुत आगे हैं, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही अनपढ़ हूँ थोड़ा. लेकिन कोई बात नहीं. मैं आपको बता दूं सर कि जो ट्रैक के साथ आप गाते हो मैं समझ सकती हूँ कलाकार के हिसाब से आपको क्या लगता है, लेकिन मैं अपनी ओर से बताना चाहूंगी जब आप गाते हो ना पीछे से सुर अपने आप निकल के आते हैं, तो आप वो फिक्र ही मत करो, आपके पीछे कुछ भी नहीं है. आपके साथ सुर है ही, लगे हुए ही है आपके पीछे ही पीछे, जो आपके साथ साथ चल रहे हैं और सबको ये ऐसे ही मजा दे रहा है जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हम आपका एक स्टेज परफॉर्मेंस देख रहे हैं. यस. सो और इसीलिए कि पूरा जो 2020 था सबके लिए ऐसा रहा है, तो 2021 में आप जैसी जो डायनामिक पर्सनालिटी है, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और स्पेशली मैं कहना चाहूंगी कि कर्मा फाउंडेशन जिसका ये सहारा इनिशिएटिव जो है वो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स एंड डिफरेंटली एबल्ड बच्चे और अनाथ बच्चे और गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले बच्चों के लिए काम करता है. तो मुझे तो भी ऐसा लगता है कि यू आर द बेस्ट रोल मॉडल फॉर अवर इनिशिएटिव, सहारा इनिशिएटिव, बिकॉज आप अपनी जगह पे जो हो वो लाजवाब हो. तो प्लीज आप सुनाते जाइए और हम सुन रहे हैं. जी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. मुझे भी ये सोशल काम में बहुत ही इंटरेस्ट है और मैं लगातार आपके साथ हूँ. जहां जहां मेरी जरूरत महसूस हो आपको, मैं सिर्फ आप ऑर्डर कर देना, आप विल बी देयर. थैंक यू सो मच सर. ऑर्डर क्या करेंगे, हम तो विनती ही करते रहेंगे और आप हमारी विनती स्वीकार करते रहिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. जी जी. अब ड्यूएट शुरू करते हैं. और ड्यूएट में लाइव शो में तो लोग ऐसे बैठते थे कि कब ड्यूएट आए, कब ड्यूएट आए.
तो अभी ड्यूएट अभी भी हम दोनों। बहुत सारे लोग बैठे हैं सर, मोबाइल को हाथ में पकड़ के अरे, बैठे हैं, बहुत सारे जी लोग हाँ, बैठे जी हैं। जी 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 जी। जी हम ड्यूएट शुरू करते हैं। जी। ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। ऐसे तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जाने वफा तुम खूब मिले, ऐ जाने वफा तुम खूब मिले, क्यों न बने पागल, क्या दुनिया पाई, ये देख के दिल धुआ ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। जीवन बचे हलचल और बचती रही शिकाई, ये देख दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। थैंक यू। सिर्फ बादल ही दीवाना नहीं हुआ सर, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब दीवाने हो गए। जी। सबका सिर्फ बादल दीवाना नहीं हुआ है, जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो सब दीवाने हो गए, जी, बहुत बहुत आपके शुक्रिया। दीवाने हो गए। थैंक यू सो मच। तो हजू एक सवाल સર જી. ને પણ અને પછી દક્ષાબેન ને પણ મેમ ને પણ વડીલો અને દિવ્યાંગો માટે આપનો શું પ્રેરણાદાયી મેસેજ રહેશે સર? મેસેજની અંદર તો એક વાત તો પહેલા તો ડિફરન્ટ
दिव्यांग के लिए मैं कहूंगा हम्म। कि दिव्यांग को आपने देखा होगा कि इसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। आप कहीं भी जाइए, अपंग मानव मंडल में जाइए, ब्लाइंड स्कूल में जाइए, कि उनके चेहरे पर हंसी ही होती है। कभी कभी तो मैं आम आदमी को देखता हूं तो पता चलता है कि मैं दिव्यांग हूं या वो दिव्यांग है। सही में, सही में। सच कहता हूं मैं, ये जो मैंने महसूस किया है। तो पता नहीं कौन से टेंशन में जी रहा है, कौन से, हमारे पास तो इतना टेंशन होता है फिर भी हम हंसते बाते रहते हैं कभी। और जीवन में एक मंत्र रखा है कि हर फिक्र को गाने में उड़ाता चला जाए, धुएं में नहीं, हर फिक्र को सुरों में गाने में। उड़ाता चला जाए। तो बहुत ये बढ़िया। मैंने देखा है कि आप ब्लाइंड उनको भाई को चक्षु उसको देखें या तो उनके चेहरे पर स्माइल ही होती है। तो मैं समझता हूं कि आम आदमी को उनसे कुछ प्रेरणा लेना चाहिए। दूसरी बात कि बुजुर्गों के लिए हमेशा इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म से लेकर बड़ा किया है, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, तो उनसे कुछ सीखना चाहिए। अगर एडवांस जो है डिजिटल जो वर्ल्ड है, ये सब है, इसमें हो सकता है कि शायद आप आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि बुजुर्गों को इज्जत देकर, उनको अगर समझ नहीं है तो प्यार से, मोहब्बत से उनको समझाना चाहिए, क्योंकि उनको उस उम्र में सिर्फ प्यार और अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए, मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही समझते हैं सर, बिल्कुल सही समझते हैं। और आपसे मैंने इसलिए पूछा ये क्योंकि आप ये दोनों दौर से गुजरे हो, मतलब आपको पता है एज अ सीनियर सिटीजन कैसा लगता है, और ऐसे एज अ जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उसके हिसाब से आपके चेहरे पे जो स्माइल रहती है, और आप दूसरे लोगों को जो देख पूरी दुनिया का बोझ उठा के चलते होते हैं ऐसा लगता है। सो बिल्कुल सही कहा आपने। मैम आपके लिए भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सवाल कि एक वरिष्ठ वडील के हिसाब से तौर से आपका रोल क्या है इस सोसाइटी में? मतलब आप एक रोल मॉडल की तरह कोई बात करेगी तो एक सीनियर सिटीजन की तरह आप क्या सोचती हैं, और दूसरे ऐसे काम करने की जो इच्छाएं है या जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिलती है? जी, पहले तो मैं कहूंगी कि सीनियर कैसे बनते हैं, जूनियर जी होके फिर बाद में सीनियर बनते हैं। तो जो सही है। लोग अभी सीनियर को निग्लेक्ट करते हैं या उसको इल ट्रीट करते हैं, तो उनको पहले वो देखना चाहिए कि वो भी इस स्टेज पे जाने वाले हैं। तो ये देखना, और ये अगर जो आज हम लोग कर रहे हैं वो हमारे बेटे या बेटियां देख रही है, तो वो भी वही करेंगे जो हम आज कर रहे हैं। तो उसको रोक के हमें ऐसा करना चाहिए कि वी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स, और उनको ऐसे ट्रीट करें जैसे हम लोग अपने माँ बाप के आशीर्वाद के बिना आप कभी सुखी नहीं हो सकते, ये 100% है। तो आप अगर उनको दुखी करेंगे तो आप कभी सुखी होने ही वाले नहीं हो। तो क्यों ना हम हर एक सीनियर सिटीजन को ऐसे देखें कि जो अपने माँ बाप ही है, तो उनको ऐसे ट्रीट करें जैसे हम अपने माँ बाप को करते हैं, और उसको उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही ऑनर, सब कुछ जो हम अपने माँ बाप को देते हैं वो ही देना चाहिए हमें। मैं ऐसा सोचती हूँ। और जो लोग कभी इल ट्रीट करते हैं तो वो मैं देख नहीं पाती हूँ, मैं रो पड़ती हूँ, तो क्यों ऐसे करते हैं ये लोग? ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हम भी वही दौर से गुजरने वाले हैं। तो तब हम शायद जो वो लोग बेर कर रहे हैं हमें, वो उतना शायद हमारे में है शक्ति भी नहीं होगी इतना सहन करने की। मैं तो ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि हम लोगों में सहन शक्ति बहुत कम है उन लोगों से। तो जब हम वो दौर पे आएंगे तो उनके संशक्ति हमें नहीं होगी। सो आई बहुत सही थिंक बात है। we should respect our elders and always I mean give them the best love we can ever give to them. Best, that's what. सही है, सही है। होता है। मैं 16 साल से बुजुर्गों के लिए काम करती हूँ तो मुझे पता है उनको क्या चाहिए होता है। और आप जो बोलो बिल्कुल सही बोला आपने कि सोसाइटी में ऐसी ही एक रिस्पेक्ट की, केयर की और लव की नीड है
पैसा या चीजें उनको उतनी खुशी नहीं देती है जितनी आपका कंसर्न, आपका टाइम, वैल्यूएबल टाइम जो आप उनको देते हो, उनकी सुनते हो, वो बहुत खुश हो जाते हैं। और कर्मा फाउंडेशन का जो ये सहारा इनिशिएटिव है, हाँ, वो इसी बातों को आगे लेने के लिए ही और लाने के लिए ही काम करता है कि रिस्पेक्ट द एल्डर्स फर्स्ट। दैट्स ट्रू। और कभी हमने कई बार ये, आई शुडंट से दिस वृद्धाश्रम, आई डोंट बिलीव इन दैट, कि वहां पे हमने कई शोज किए हैं तो उन लोगों की हम देखते हैं तो देख नहीं पाते हैं वो लोग कैसे, सही बात। ठीक है, वो प्रेम के लिए इतने तड़पते हैं कि पास बैठ के उनको गले लगा लो तो वो रो पड़ते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो मैं नहीं कर पाती, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं कर। कोई बात नहीं मैडम, ये सारी बातें हमारी सराउंडिंग है और इसीलिए हमारे अंदर ये संवेदनाएं जगी रहती है, क्योंकि जो संवेदनशील है वही ऐसा सोचता है। तो ठीक है, आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, अपनी फीलिंग को ही आपने अपनी प्रेरणा बनाया है ऐसे काम के लिए। पर फिर भी शो मस्ट गो ऑन, ये सब है, आप जैसे लोग भी है, और हम जैसे जो हमें देख रहे हैं अभी हमारे साथ जुड़े, वो सब भी है जो ऐसे लोगों के लिए बहुत आगे बढ़ के काम करते हैं और करते रहेंगे। तो एक और आपकी तरफ से गाना हो जाए, दोनों की तरफ से, और फिर मैं जरूर। देख रही हूँ कि शायद हमारा वक्त भी हो चला है, तो हो सकता है कि ये गाना हमारे इस कार्यक्रम का आखिरी गाना हो। तो आपकी चॉइस का बहुत ही बेहतरीन, जो आपके दिल के करीब हो, वो गाना हो जाए। सॉरी फ्रेंड्स, कोई टेक्निकल एरर આવ્યું, પાછા એ લોકો બહાર જતા રહ્યા છે, પણ कृष्ण जी का गाना आपको सुनाऊंगा। हसन जयपुरी साहब के बोल हैं और इस गाने के शब्दों में ही आखिरी बात हो जाती है और हम आखिरी सलाम भी उसे कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसको पिक्चराइज किया है आपके, हमारे और सबके तेहिते शम्मी कपूर जी और આહા, ब्यूटीफुल साया बानू। आइए सुनाते हैं। दिन सारा गुजर कोई अंगना, अब जाने मुझे कौन छचना, मेरी आशा पके, मेरी आशा पके, ओ मेरी आशा पके, मेरी आशा पके। आसान है जन्म है दिल से, कट जाओगे निकल कर दिल से, मेरे यार चौक है, मेरे यार चौक है, मेरे यार चौक है, मेरे यार चौक है। तो दिन भर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं, ओ दिन भर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं। आई जहाँ की रात अब बता दे क्या करूं मैं, आई जहाँ की रात अब बता दे क्या करूं मैं। याद आएगी बातें तुम्हारी, करेगी मोहब्बत हमारी, मेरे यार चौक है, मेरे यार चौक है, मेरे यार चौक है, मेरे यार चौक है। सारा गुजरा तो अंगना, अब जाने मुझे कौन सजना, मेरे यार चौक है, मेरे यार चौक है, ओ मेरी यार चौक है, मेरी यार चौक है।
आसमां मेरी हंसी पे छा गया तू, मैं धरती तू आसमां मेरी हंसी पे छा गया तू, सीने के सुर्ख बाग में दिन भर के आ गया तू, सीने के सुर्ख बाग में दिन भर के आ गया तू, और तेरी ख्वाबों की जैसे, और तेरी ख्वाबों की जैसे, मेरी आशा है, मेरी आशा है, ओ मेरी आशा है, मेरी आशा है, जिस सारे गुजारा कभी नचना, अब नहीं दे मुझे पूरे सजना, मेरी आशा है, मेरी आशा है, ओ मेरी आशा है, मेरी आशा है। आसान है जन्म महफिल से, मेरी गाँव के निकल कर दिल से, मेरी आँखों का है, मेरी आँखों का है, ओ मेरी आँखों का है, मेरी आँखों का है, मेरी आँखों का है, मेरी आँखों का है। Thank you. शब्बा खैर, शब्बा खैर। पूरा दिन जैसे 1 घंटे में 24 घंटे हमने साथ में बिताए, वैसी आपने बात कह दी। और ये वक्त की पाबंदी नहीं होती तो ये शब्बा खैर अभी थोड़ी देर के बाद होती, पर सबको समय के साथ चलना होता है और हमें भी चलना है। हमें तो इसीलिए चलना है कि कर्फ्यू भी चलता है। जी जी जी, इसीलिए किसी को दिक्कत ना हो। और दोबारा मिलने के वादे के साथ कर्मा फाउंडेशन के सहारा इनिशिएटिव की ओर से और पूरे कर्मा फाउंडेशन की ओर से मैं आप दोनों बेहतरीन कलाकार का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोबारा जरूर मिलेंगे और भी शामें शानदार करते रहेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम, और सबसे पहले सबसे बड़ी बात कि सर ने जैसे बोला कि पीछे पूरा मजमू लगा रहता था लोगों का और ऑर्केस्ट्रा का, और मैं शो करता था, और आज ये पेंडेमिक ने मुझे यहाँ पे लाके रखा है, फिर भी आपने जो जिंदा दिली से ये पूरा इवेंट हमारे साथ दिया है आपने, और लालच बढ़ रही है हमारी कि अभी और दिल मांगे मोर की तरह ज्यादा ऐसी शामें हम गुजारे और सबको एंटरटेन करें। और इसी वादे के साथ शब्बा खैर, शुक्रिया, रब सबको सलामत रखे। थैंक यू ફ્રેન્ડ્સ। આઈ હોપ કે સહારા ઇનિશિયેટિવનો આ 2021ના વર્ષનો પહેલો પ્રોગ્રામ શામ શાનદાર આપને ખૂબ જ મજા આપી ગયો હશે, અને આપની સામે જ આપ સૌની સાક્ષીએ એમની પાસે પ્રોમિસ લીધું છે કે આપણે ફરીથી આવી શામ શાનદારનું આયોજન કરીશું। તો ત્યાં સુધી રાહ જોતા રહો એન્ડ આવજો, અને કેબીસીમાં બચ્ચનજી કહે છે ને, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, थैंक यू।